বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেরই জানতে ইচ্ছে করে যে আমাদের আগের বেরিবান কীরকম ছিল। আগের যেই বেরিবানটা ছিল ওটা দেখার তোমাদের খুব ইচ্ছে করে। তো আজকে আমি তোমাদেরকে ওই বেরিবানটা দেখাবো। আমি আজকে দেখাবো তোমাদের আকমারি রোড থেকে শুরু করে খেজুরতলি পর্যন্ত দেখাবো আপনাদের। তো কথা না বলে শুরু করা যাক। আপনারা সম্মানীয় মান সম্মান বোধ আছে আপনাদের? যারা বিয়ের পরের দিনই নতুন বউকে বলে স্বামী থাকতে বিধবার মতো জীবন কাটাতে হবে, তাদের আমার মান সম্মান? বাবা, বিয়ের সময় মা আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ঘর আলো করো মা। ঘর আলো করবে কি, ঘর একেবারে জ্বালিয়ে দেবে। বিষ নেই তার কুলো কোনা চক্কর। ও ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়েছে, তারপর থেকে আমার কাছে বড় হয়েছে, তাই এই ধরনের কথা বলছে। তবে আমি কথা দিচ্ছি ও ভবিষ্যতে এই ধরনের কথা আর বলবেন। আর কথা দিতে হবে না, আমাদেরই ভাবতে হবে এ বাড়িতে এ মেয়েকে রাখা ঠিক হবে কিনা। আপনাদের সেটা না ভাবলেও চলবে। আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে আমাকে অগ্নিসাক্ষী করে যে আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে, তারই একমাত্র অধিকার আছে বলার আমি এ বাড়িতে থাকবো কিনা। বৌমা, দয়া করে তুমি চুপ করো। আমায় ক্ষমা করবেন না। আমার দাদার অসম্মান আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবো না। আমার দাদাই রোজে আমাকে তুলে দিয়েছিল। তুই আমার কথা শোন। তুমি হাতটা নিচে নামাও। কেন তুমি ওদের কাছে হাত জোড় করছো? এ হলো আমাদের আগের পতেঙ্গা। তো আমরা আজকে আকমার রোডের মাথা পর্যন্ত যাব। তোমরা যদি কেউ যদি তোমাদের বাড়িতে যেতে চাও, তোমাদের আগের বাড়ি কোথায় ছিল আমাকে কমেন্টে বলবা, আমি নিয়ে যাব, তোমাদেরকে দেখাবো। যাই হোক, শুরু করা যাক। তোমার জন্য দিতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। চলো দাদা। না, আপনার বোনের কথা আপনি ওকে এখানে নিয়ে এসে অন্যায় করেছেন। আপনি ভুল করেছেন। এখনই আপনি ওকে ওর বাড়িতে ফেরত নিয়ে যান। ওদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবেন কথা দিয়ে সবকিছু মিটমাট করে ফেলবেন। এখানে পূজা সারা জীবনের প্রশ্ন জড়িত। আমি ওর জীবন এভাবে নষ্ট হতে কিছুতেই দেব না। বারবার তুমি আমাকে একই কথা বলছো। ওরা সব ষড়যন্ত্র করে এরকম একটা প্ল্যান করেছে। তাদের কিছু একটা অপমান করেছে। আর তুমি আমাকে ওর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা বলছো। পূজা, তুমি মাঝখানে কোনো কথা বলবে না। সেটা দিয়ে এখনো পুতুল বানানো যায়, কিন্তু তোমার দাদার ভুলে আমার সংসার ভেঙে গেলে ও নিজেকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। তোমার জীবন সবে শুরু হয়েছে পূজা। তুমি আমার সুখের কথা চিন্তা করছো। তুমিও তো আমার দাদাকে নিয়ে সুখের সংসারে স্বপ্ন দেখেছো। তার কোনো দাম নেই আমার কাছে। আমি বলছি তুমি দুদিনই অপেক্ষা করো, দেখবে আমার স্বামী এসে সব সমস্যা মিটিয়ে আমাকে ঠিক হয়ে যাবে। শুনুন ভাই, মালপত্র কিন্তু ট্রাকে ঠিক মতো তুলে দেবেন। বিকেল 5টার মধ্যে যেন মাল পৌঁছে যায়। ঠিক আছে, বিকেল 5টা। আপনি
আমার একটা ভুল হয়ে গেছে, মানে গতকাল তুমি বাড়িতে ছিলে না, তোমাকে না বলেই আমি পূজা দাদা। আপনি যা বলতে এসেছেন আমি বুঝতে পেরেছি, তবে এইসব কথা এখানে আলোচনা না করাই ভালো। ফ্যাক্টরির লোকজন আছে, শুরু করুন, হাসাহাসি করুন। চলুন বাড়িতে চলুন। বসুন। গতকাল আমার একজন পরিচিত লোকের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তাই আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছে। প্রথমে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। ছি, কি বলছো তুমি? আমি তো The Undertaker, The Rock, John Cena, Roman Reigns, Charlotte Flair, Becky Lynch, and more. From blockbuster legends to blockbuster superstars, watch WWE Blockbusters 8 every night, only on Sony 10-1 and Sony 10-3. साम दाम दंड भेद कोई नीति नहीं अपनाएंगे। ये इस लोग कह रहा है कुछ ये हीरा, जरा उसकी सुनो तुम। थी इनमें से एक कंकड़ जैसी। কাছের সময় রাস্তায় ছেড়ে যে হার্ট অ্যাটাক হয়, বাড়িতে আলোর রোশনাই, কিচকিচ করছে নিমন্ত্রিতের দল, আমার ফোন করে সে যে বিয়ের পিড়িতে বসবে বলে অপেক্ষা করছে। এমন সময় বন্যা এসে এলো বরের লাশ। আমার বোন লগ্নভ্রষ্ট হলো। বিষয়টিকে আমরা কেউ মেনে নিতে পারিনি, কিন্তু কি করবো বলুন, ভাগ্যের উপরে তো কারো হাত নেই। সেই দিন থেকে আমার বোন ঠিক করেছিল যে সে আর কোনোদিন বিয়ে করবে না, আর আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বোনের বিয়ে না দিয়ে আমি কোনোদিন বিয়ে করবো না। আমার অনেক সম্বন্ধ ছিল জানেন, কিন্তু আমি সবগুলোই না বলেছি। আমি বলেছিলাম যে একটি শর্তে আমি বিয়ে করতে পারি, কানা খোঁড়া বোবা কোনো মেয়েটা আমার কোনো আপত্তি নেই, শুধু সেই বাড়ির ছেলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দিতে হবে। তারপর আপনারা পূজা পুজো একসাথে দেখলাম। আমি ঘটককে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ছেলেটি আমার বোনকে বিয়ে করতে রাজি তো ঘটক বলেছিল হ্যাঁ। আমি অনেক কষ্টে আমার বোনকে বুঝে সুঝে রাজি করেছি। कोई आ ना सके हारे। এ বিষয়ে কিচ্ছু বলেনি। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি, আমি বুঝতে পারছি যে ঘটক এসব ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেনি, কিন্তু ওই বাড়ির লোককে বলেছিলাম যে আমার বোনের বিয়ে দিয়ে তারপর আমি বিয়ে দিতে বসবো। আমার সমস্ত স্বপ্ন আজ ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা দুজনেই ভাগ্যের কাছে ঠকেছি। দূরা এটা স্টিমিল রুট। আপনি তো আগে দেখেছেন, আলো আলাপ হয়েছে। নমস্কার। আপনি আমার বোনকে বিয়ে করে সুখী করলে। दुनिया एक कुरुक्षेत्र का मैदान है। यहाँ हर मोड़ पर दुनिया तुम दोनों भाइयों को लड़वाने की कोशिश करेगी। हर मुजरिम को लगता है कि वो कानून को मुजरा करा सकता है। कानून को वही मुजरा करा सकता है जिसमें जिगरा हो। हवा को तूफान बनते दिल नहीं लगता। मेरा फंडा डंडा है। सप्तमेव जयते 2 26 मार्च शनिवार रात 7 बजे सिर्फ मैक्स पर। सर, रिपोर्टर गौतमी डिस्चार्ज हो गई। हॉस्पिटल के एमडी रघुराम से मेरी बात हुई है और उन्हें भी ये नहीं पता कि उसे कहाँ शिफ्ट किया गया है। कुछ भी करके ढूंढो उसे। अगर वो बच गए तो मैं अंदर हो जाऊंगा, समझ रहे हो तुम? राहुल, हाँ मोटा भाई। आंसू मंडली आ गई। बेवड़ा कहाँ है? कॉमन भाभी किथे? अपन को क्यों बुलाया भाई?
बिना झूठ बोले अपनी जिंदगी पे रोशनी डाल। मुकड़ की पीने के बाद मैं बहुत सच सच बोलता हूँ। मालूम है शराब करेगा लीवर खराब, थोड़ी पी। मोहम्मद भाभी को टुन कर डाल। हाँ, शुरू हो जा। एक बार मैं समंदर में गया, वहाँ पे सीट की जगह रमेश किप्पी मिली। बोले छोले 2 तुम करो। डायरेक्ट पॉइंट पे आ। उधर ही जा रहे लाओ। फिल्म क्या बोला तू? छोले 2। मेन सीन बता। ठाकुर साहब नए हाथ लगवा कर बसंती को लेके मेले में घूम रहे हैं। और बसंती गन्ना चूस रही है। क्या दिमाग पाया है? गब्बर ने मौसी के साथ शादी कर ली और शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली बसा ली है। सूरमा भोपाली के साथ सांबा तांबा बेचने लग गया है भाई। ये शोले के छोले ठंडे कर डालेगा। स्टोरी में जान डालने के लिए करना पड़ता है। बहुत जान डाल रहा है। आप दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया? किया क्यों नहीं, ऑफर भी आया था, बड़े डायरेक्टर ने दिया था। फ्रंट दरवाजा बोल के मैंने बोला 2 साइड डोर नाम रखो। 2 साइड? हाँ। मैडम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। ये डबल मीनिंग में मत जा, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसा डबल मीनिंग नहीं सर, परफॉर्मेंस मतलब एक्टिंग डांसिंग दोनों। अरे डांसिंग इसका प्लेयर कोई नहीं हो सकता। मोटी मोटी एक ऐसा ना चाहिए। लड़की कोई हो, डोंट टच माय ईगो। अपना मुंह बंद कर, नहीं तो तेरे साथ डांडिया खेलूंगा। तू शुरू हो जा। कौन से गाने पे नाचूं? वही गाना जिसमें बीन बहुत बजती है। हाँ, शुरू हो जा। क्यों भूखे शेरों को दाना डाल रही है? चल ताकि नदी से कपड़े धोकर आते हैं। मेरे को पहले से ही ज्ञान था, मदिरा की खुशबू से प्यासे कौवे जरूर आएंगे। पिट कर खाओगे या खाकर पिटोगे? तूने बताया नहीं यहाँ दारू पार्टी भी है? ऐसा दोस्त है, बताया नहीं। बिरयानी भी है। देखना, इसने मुझे बताया नहीं। काय को नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा माल असली है कि नकली। क्या टेस्टिंग करा? बड़ा भाई 18 मंथली कितने का पैकेज है? ये कॉल के पैकेज का पूछ रहा है या डेटा के? छे पगार पूछ तो रे। 6 सैलरी तनख्वाह पगार पैकेज कुछ नहीं। पछे भाई बर्थडे टू बर्थडे कुछ दे देते। मेडिकल इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस वो क्या होता है? बीमा। मान लो मैंने तुम दोनों का हाथ पैर तोड़ दिया तो? गाड़ी का और घर का इंश्योरेंस सुना था, लेकिन हाथ पैर तोड़वाने का भी होता है। चुमत्या होता है। हमारी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं की है क्या? सिक्योरिटी तो वॉचमैन करता है। अपने गए आने नेताजी के लिए काम करके खुद के हाथ पैर भी तोड़वा दिए। हॉस्पिटल में खाटला लग गया था। कितने दिन का? 6 महीने। हाँ 6 महीने का लग गया। 6 महीना? अरे रे એટલે મરને के बाद लावारिस लाश बनोगे? सारे बच्चे कौन स्कूल में जाओ है? अरे स्कूल में क्यों जाएगा? मेरा बेटा चाय की टपरी पे काम करता है, इसका बेटा बलून में हवा भर के बेचता है, और वो जानिए का बेटा है ना, गोल्ड माइन पिक्चर की टिकटें ब्लैक में बेचता है। सबसे ज्यादा वही कमाता है। ऐसा क्या? हाँ भैया। मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया? जॉब पे तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आदित्य भाई के लिए कीलिंग और विक्रम भाई के लिए लैंड ग्रेबिंग। बोले तो खुद का बिजनेस करने का आइडिया बताओ। जल्दी से बताओ। होम मिनिस्टर के लिए जो जमीन पर कब्जा किया है, अब उसी जमीन पर अपना कब्जा जमाओ। अरे आइडिया तो सॉलिड है बापू। खूब नोट बनाएंगे भाई लोग। बैठो सब। व्हाट एन आइडिया। चढ़ जाइए क्या? वहाँ रोज दारू का भंडारा होता है। इसने एक दिन पिलाई और तुम लोग बैठ गए। ये कल कल्टी ले लेगा तो टी पियेंगे। सिम कार्ड के लिए फॉर्म भरा है कभी? हाँ भाई ने भरवाया। चले हुए स्वीट पोटैटो, वो सिम कार्ड का नहीं, इलीगल दारू का ठेका चलाने का फॉर्म था। मुकेश, अनिल, रतन, विजय, वही लोगों के नाम से जो शॉप है वो तुम्हारी हुई। उसमें कब्जा करके कब्जा दिलाने का काम मेरा। ये विजय हिमालय नहीं भागेगा। ब्रांडी भाई, यहाँ तक नजर जा रही है वो जमीन का कब्जा कर लेते हैं, और उधर भी पूरी की पूरी जमीन। ये बोर्ड किसने लगाया? उखाड़ो इसे। हटो। अरे मम्मी ना सब बोर्ड को हाथ मत लगाना। प्रॉब्लम क्या है बोल? तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। मेरे को बड़े से बड़ा आईपीएस भी नहीं छू सकता। मेरे पास एक्सीलेटर बेल है। एक्सीलेटर बेल? ये कहाँ है क्या? ये बकुड़ा एक्सीलेटर बेल नहीं रहे, एंटीसेप्टिक बेल। बकुड़ा जो बोल रहा है वही है। 2 रुपए के कागज पे तू कुछ भी लिखवा कर जमीन पर कब्जा कर लेगा? अरे गांडा, ये मेरा कारपेंटर स्टाइल है। कारपेंटर? बकुड़ा कारपेंटर नहीं रे गांडा, कॉर्पोरेटर। बकुड़ा ने जो बोला वही। चला गली बॉय, चुपचाप इधर से निकल जा, नहीं तो मेरे ऊपर रैप करने का केस ठोक दूंगा। तुम्हारे मैं करूंगा। हाँ सबके सामने तू ही तो कर रहा है। ये देखना। 1 नंबर का पागल है। अगर यहाँ रुका तो फेसबुक पर वायरल हो जाऊंगा। चलो।
सारे के सारे एमएलए हमारी तरफ आ गए हैं। सर उसने हमारे सभी आदमी खरीद लिए, हमारी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया सर। तूफान से पहले की खामोशी को वो मेरी कमजोरी समझ रहा है। उसकी बहन का इलाज करने वाले डॉक्टर का कुछ इलाज करो। मालविका हेलो, स्पीकर ऑन कर। हमें कुछ करना है। शर्म नहीं आती? किसी दिन के लिए माँ ने बड़ा किया था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तो खुद की जान लेना चाहा था? मेरा जी के कोई फायदा नहीं है। माँ का सपना था कि मैं पुलिस में जाऊँ। तेरे पापा पुलिस है, तू भी बड़ा होके पुलिस वाला बनना और देश की सेवा करना। माँ बचपन से यही बोलती थी। जब पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करता? पुलिस वाला बनने के लिए मैंने दिलों जान से मेहनत की। मेरा जी के कोई फायदा नहीं। बेटा तू पुलिस नहीं बन सका कोई बात नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी मेरे लिए उससे कहीं बढ़कर है। आज के बाद ऐसी बेवकूफी फिर कभी मत करना। तुझे मेरी नहीं करूंगा माँ, हिम्मत मत करिए। ये जरूर पुलिस ऑफिसर बनेगा। अब ये बार अच्छी तैयारी करना। तैयारी करके क्या होगा? आप एक मिनट रुकिए। मेरे 4 दोस्त ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। एक को मीडिया ने निमोनिया बताया, दूसरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, तीसरे को ट्रक ने उड़ा दिया, चौथे ने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। ये सब नहीं हो पाया।